Hello, Bacho. Welcome to Genius Classes. Today is our sixth class on inverse trigonometric function. And in this class, we are going to discuss two new properties, which you can see it on the screen, but by means of graph. जैसे हमने previous class में भी बोला था कि all these properties are very important and you can remember it if you can remember the graph only. Because graph is very important from different problems point of view. Okay, so इसका total properties हम लोग discuss करेंगे through graph. So before starting the class, if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. If you like my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. And if you have any doubts regarding this class, please do comment me so that in the next class I can answer your problem and then I will proceed. So let's start the class. So देखो बच्चों, अगर इसका ग्राफ मुझे बनाना है, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी बोले हैं कि you have to remember three important things while drawing this kind of graph. पहला वाला बोला था कि you have to define its domain. नंबर 2 क्या बोला था? इसका रेंज क्या होगा? और नंबर 3 क्या बोला? What is the periodicity of this function? Whether this function is periodic or not, that you have to check. तो पहले ही देखो, इस फंक्शन से क्लियरली मुझे देख रहा है कि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है. सो तुम पीरियोडिसिटी के बात तो भूल ही जाओ. मतलब ये ग्राफ पीरियोडिक नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट अबाउट इट्स डोमेन? देखो बच्चों, अगर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू. एंड y क्या होता है? y बिलोंग्स टू फ्रॉम -π/2 टू π/2. ओके, सो इस फंक्शन का डोमेन होगा 2x by 1 minus x square belongs to any real value implies x belongs to any real value. लेकिन 1 minus x square ये जीरो नहीं होगा. इसका मतलब क्या हुआ? x square will not be equals to 1 implies x क्या नहीं होगा? +1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा. मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या आया? x belongs to any real value except -1 and 1. ओके, और इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? y belongs to open -π/2 to π/2. ठीक है बच्चों? अच्छा, एक काम करते हैं. लेट x इक्वल्स टू tan थीटा हम लोग एज्यूम करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स x इज थीटा, which implies इस फंक्शन का डोमेन क्या है? x belongs to any real value. लेकिन मेरा जो डोमेन है एक्चुअल फंक्शन का, इट इज बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 and 1. मतलब यहां पर भी मेरा डोमेन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 and 1. और इसका रेंज क्या होगा बच्चों? इसका रेंज होगा फ्रॉम -π/2 टू π/2. ओके, अगर थीटा लाई कर रहे -π/2 से π/2, इसका मतलब ये हुआ 2 theta belongs to -π to π. ओके, 2 theta belongs to -π to π. बहुत अच्छा. अभी देखो, मेरा जो फंक्शन है ये अभी क्या बना? y is equals to tan inverse 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. मतलब आ रहा है क्या? tan inverse tan 2 theta. अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किया है. इफ यू हैव नॉट सीन माय प्रीवियस वीडियोस, link has been given in the description box. Go and check that thing first, so you will have a better grip on this topic. y is equals to, देखो बच्चों, अगर tan inverse tan x है, हम लोग क्या सीखा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x जब x लाई करेगा फ्रॉम -π/2 टू π/2. क्लियर हुआ? This will be written as -π plus x जब x belongs to π/2 से 3π/2.
और क्या सीखा? इट कैन बी रिटन एज पाई प्लस एक्स जब ये लाई करेगा फ्रॉम -3/2 टू -π/2. दिस ऑल वी हैव डन. ओके, अभी देखो बच्चों, tan इनवर्स tan 2 थीटा, इसको हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं. अगर 2 थीटा लाई कर रहा है, ये वाला चीज देखो, सी दिस वन, इफ x lies between -π/2 to π/2, मतलब यहां पर अगर 2 थीटा लाई कर रहा है फ्रॉम -π/2 टू π/2, मतलब क्या हुआ? थीटा लाई कर रहा है -π/4 से π/4, मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स x लाई कर रहा है -π/4 से π/4, मतलब x is lying between -1 and 1. मतलब your y will be equals to 2 theta. 2 theta मतलब 2 tan inverse x जब x lies between -1 and 1. क्लियर? ओके, अभी देखो ये फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं -π प्लस 2 थीटा. सी दिस वन, जब हम लोग देखेंगे कि मेरा 2 थीटा लाई कर रहा है π/2 से 3π/2 में, इसका मतलब क्या हुआ? π/4 से 3π/4 में ये लाई करेगा. लेकिन बच्चों एक चीज देखो, मेरा 2 थीटा बाउंडेड कहां से कहां तक है? -π से π. मतलब ये जो हमने लिखा 3π/2 तक जाएगा, ये उतना दूर तक जाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा 2 थीटा इज लेस देन π. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 3π/2 होगा नहीं, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा सिर्फ पाई तक. समझ में गया? क्योंकि पाई क्या है? 3π/2 से नीचे है. सो हम लोग का यहां पर अगर x लाई कर रहा है π/2 से 3π/2 के अंदर कहीं पर, तो वहां पर मेरा y होगा -π प्लस x. लेकिन मेरा 2 थीटा इज बाउंडेड फ्रॉम -π टू π, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू पाई ले सकते हैं जो है मेरा 3π/2 से कम. सो इसके लिए 2 थीटा विल लाई बिटवीन π/2 एंड π. इसका मतलब योर थीटा इज लाइंग बिटवीन π/4 टू π/2. इज इट क्लियर? मतलब कितना हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन 1. मतलब क्या लिखा देखो, हम लोग क्या सीखा? y can be written as -π plus 2 tan inverse x. -π plus 2 tan inverse x जब x will be greater than 1. Is it clear? Absolutely. Okay. अभी देखो y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये वाला थिंग देखो, it can be written as pi plus x. Pi plus x मतलब pi plus 2 theta in this case. जब मेरा 2 थीटा लाई करेगा -π/2 से -3π/2, लेकिन मेरा 2 थीटा लाई कहां से कहां तक कर रहा है? -π से π, और -3/2 -π से छोटा है. सो मेरा 2 थीटा विल लाई इन दिस केस बिटवीन -π एंड -π/2. इसका मतलब क्या हुआ? थीटा विल लाई बिटवीन -π/2 से -π/4. मतलब tan inverse x is greater than -π/2 less than -π/4. That implies -infinity less than x less than -1. मतलब क्या हुआ देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, y को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस 2 tan inverse x. कब? जब x will be less than -1. समझ में क्या? सो यही है मेरा फंक्शन y equals to tan inverse 2x by 1 minus x square का redefined function. Okay? So now let us plot this graph by using Desmos graphing calculator. You can also check this in www.desmos.com. You can check it by yourself how the graph is coming. So let us move to draw this graph by using Desmos graphing calculator. देखो बच्चों, हम लोग के पास फंक्शन क्या है?
मेरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x जब x लाई कर रहे -1 से 1। अभी किए ओके। सो पहले हम लोग क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो बच्चों tan इनवर्स x का ग्राफ तुम्हें पता है कैसे ग्राफ होता है। देखो दिस इज योर tan इनवर्स x का ग्राफ, और अगर हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये 2 y एक्सिस में ये स्ट्रेच होगा। सो ग्राफ देखने में ऐसा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अच्छा, ये y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x कहां से कहां तक बाउंड है, फ्रॉम -1 to 1। मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है। दिस इज फ्रॉम 1 एंड दिस इज है मेरा -1। ये समझो। So this portion, okay? So now let me just drop the previous one. So मेरा ग्राफ पहला वाला पोर्शन, पहला वाला जो रेंज है उसमें मेरा ग्राफ बन गया। y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, x लाई कर रहे -1 से 1, और ये होगा सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके अच्छा, अभी हम ड्रॉ करेंगे x जब एक से ज्यादा, then your y is coming like -5 plus 2 tan inverse x। मतलब क्या करेंगे, 2 tan inverse x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है जस्ट नाउ वी हैव डन। अभी इस ग्राफ को सिंस इट इज -pi is added, सो क्या करेंगे, ये ग्राफ पाई यूनिट्स y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएगा। और ये ग्राफ देखने में कैसे होगा, देखो बच्चों ये ग्राफ देखने में ऐसे होगा। ये देखो पाई यूनिट्स नीचे चले आए। सो ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू -pi प्लस 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये ग्राफ बाउंडेड कहां पर है, x इज ग्रेटर देन 1। मतलब x इज ग्रेटर देन 1 किस पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, बाकी पोर्शन हम इरेज कर देंगे, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -pi प्लस 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा बच्चों, अभी ड्रॉ करना है y इज इक्वल्स टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। पाई प्लस 2 tan इनवर्स x कैसे होगा, देखो ये वाला जो ब्लू लाइन है, दिस इज योर y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। मतलब क्या होगा, ये ग्राफ पाई यूनिट्स y एक्सिस में ऊपर चला जाएगा। मतलब ये ग्राफ को देखने में ऐसे होगा, राइट। हम ये वाला ग्राफ ड्रॉप कर दे रहे हैं। ओके, सो ये ग्राफ पाई यूनिट्स ऊपर चला गया। दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। लेकिन मेरा बाउंडेड कहां पर है, x इज लेस देन -1। मतलब वी विल टेक ओनली दिस पोर्शन एंड द अदर पोर्शन will be erased, right? So this is the graph of y equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. Is this clear? बच्चों एकदम तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद रखो थ्रू दिस ग्राफ, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अगर कोई भी पॉइंट पे तुम्हारा डाउट हो रहा है तो तुम कमेंट करो इमीडिएटली कि इस जगह पे मुझे डाउट हो रहा है, हम तुरंत उसका आंसर तुम्हें दे देंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट ग्राफ। ये वाला है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगेन y इज इक्वल्स टू अगर tan इनवर्स x है तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एंड y मतलब रेंज क्या होगा, फ्रॉम -pi/2 टू pi/2। अभी देखो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन होगा 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. This belongs to any real value. लेकिन 1 minus 3x square to define the function, this cannot be equals to 0. क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 आ गया मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? ओके, मतलब क्या हुआ, x cannot be equals to plus minus 1 by root 3। मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, it belongs to any real value except minus 1 by root 3 and 1 by root 3। क्लियर? और रेंज क्या होगा, रेंज होगा यहां पर हम बोले हैं कि इट विल बी फ्रॉम -pi/2 से pi/2 के अंदर, और क्लियरली ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द फंक्शन इटसेल्फ। अच्छा,
अभी एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स x इज थीटा। सो यहां पर क्या होगा, x बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू एंड थीटा बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अभी x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, लेकिन यहां पर हम लोग क्या लिए थे कि इट कैनॉट टेक द वैल्यू माइनस वन बाई रूट थ्री एंड वन बाई रूट थ्री, तो यहां से भी हम निकाल दे रहे हैं वो। सो ये दो चीज ये लेगा नहीं, इसका डोमेन में नहीं रहेगा। ओके, नाउ द फंक्शन बिकम्स व्हाट, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ है, tan इनवर्स tan 3 थीटा। बच्चों थीटा इज लाइंग फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब 3 थीटा कहां पर लाई करेगा, माइनस 3 पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। इज इट क्लियर, एब्सोल्युटली ओके। अभी देखो बच्चों, अभी अभी हम लोग बोले थे कि tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको हम लोग x लिखेंगे जब x लाई कर रहे कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस पाई प्लस एक्स जब x लाई कर रहे पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में, और इसको लिखेंगे x प्लस पाई जब x लाई कर रहे माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। ओके, ये हम लोग को पता है। अभी देखो बच्चों, ये y इज इक्वल्स टू हम 3 थीटा लिख सकते अगर अगर 3 थीटा लाई कर रहे फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम माइनस पाई बाई सिक्स टू प्लस पाई बाई सिक्स थीटा लाई करेगा। इसका मतलब हुआ क्या हुआ, माइनस वन बाई रूट थ्री से 1 बाई रूट थ्री तक x लाई करेगा। सो x जब इस रेंज पे है तब तुम्हारा y क्या होगा, 3 tan इनवर्स x। इज इट क्लियर, ये कब हो रहा है, जब x लाई कर रहे हैं फ्रॉम माइनस वन बाई रूट थ्री टू 1 बाई रूट थ्री। तो इसको एक बॉक्स बना के रखें। अगेन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो माइनस पाई प्लस एक्स, मतलब यहां पर क्या होगा, माइनस पाई प्लस 3 थीटा। कब, जब 3 थीटा तुम्हारा लाई करेगा फ्रॉम पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। इज इट क्लियर, मतलब क्या हो रहा है, थीटा इज लाइंग फ्रॉम पाई बाई सिक्स लेस देन पाई बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाई सिक्स इज लेस देन tan इनवर्स x इज लेस देन पाई बाई टू। मतलब क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट थ्री। मतलब y इज कमिंग लाइक माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। कब, जब x हो रहा है ग्रेटर देन 1 बाय रूट थ्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एकदम। सो इसको भी हम एक बॉक्स बना के रख रहे हैं। चलो अभी देखो, y को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस पाई। क्या लिख सकते हैं, y को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस पाई। x तो हम लोग लिखेंगे नहीं, यहां पर लिखेंगे 3 थीटा प्लस पाई। y इज इक्वल्स टू 3 थीटा प्लस पाई। कब, जब 3 थीटा इज लाइंग फ्रॉम माइनस 3 पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू। यही देखो, ये समझो। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा मेरा कहां से कहां तक लाई कर रहे, माइनस पाई बाई टू से लेस देन माइनस पाई बाई सिक्स। और थीटा की जगह में अगर हम tan इनवर्स पुट कर दे, लेस देन माइनस पाई बाई सिक्स बच्चों, मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन माइनस वन बाई रूट थ्री। मतलब y इज कमिंग लाइक पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। कब, जब x इज लेस देन माइनस वन बाई रूट थ्री। सो इसको भी एक बॉक्स बना के हम लोग रखें। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। ओके
सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ विद द हेल्प ऑफ डिसमॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग का फंक्शन क्या है, ये वाला अभी अभी हम लोग डिफाइन किया। अभी हमको ड्रॉ करना है पहले 3 tan इनवर्स x, फिर उसका बाउंड्री कहां से कहां तक है, -1/√3 से 1/√3। सो देखो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x कैसे होगा, पहले तुम जानो कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। अभी अगर 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी स्ट्रेच्ड अलोंग द y एक्सिस बाय 3 टाइम्स, ग्राफ देखने में ऐसे होगा। लेकिन हमने बाउंड्री कहां से कहां तक किए हैं, -1/√3 से 1/√3, मतलब किस पोर्शन को हम लोग लेंगे, देखो बच्चों ये पोर्शन को हम लेंगे। ये मेरा क्या है, फ्रॉम -1/√3 से 1/√3, तो बाकी पोर्शन हम रिमूव कर देंगे। तो ग्राफ फ्रॉम -1/√3 से 1/√3 में देखने में ऐसे होगा। अच्छा अभी देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, कब, जब x इज लेस देन -1/√3। सो पहले देखो पाई प्लस 3 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, पहले 3 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। अगर तुम पाई ऐड करोगे तो क्या होगा, ये ग्राफ y एक्सिस में पाई यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ को देखने में होगा ऐसे, राइट। लेकिन मेरा बाउंड्री कहां से कहां तक है, x इज लेस देन -1/√3। अगर x इज लेस देन -1/√3 है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोर्शन, सो द अदर पोर्शन आई कैन इरेज। सो ये ग्राफ को देखने में ऐसे होगा, राइट, ओके। अभी देखो क्या करना है, -पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। अगेन 3 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा है, ऐसा। अभी अगर तुम -पाई करोगे तो क्या होगा, -पाई का मतलब क्या होगा, पाई यूनिट्स y एक्सिस में नीचे चले जाएगा, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो उस ग्राफ को देखने में कैसे होगा, देखो ये क्या हुआ, ये ग्राफ पाई यूनिट्स y एक्सिस का नीचे चले आया। सो ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, ओके। लेकिन मेरा फंक्शन जो डिफाइंड है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1/√3। सो वो क्या पोर्शन है, वो सिर्फ ये पोर्शन है, यहां से जो येलो कलर का दिखा हुआ है ये पोर्शन है x इज ग्रेटर देन 1/√3। तो बाकी पोर्शन हम इरेज कर देंगे, ओके। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ग्राफ को देखने में ऐसा होगा। Have you understood this clearly? Again, I'm telling you, if you have a single doubt, please do comment so that I can answer it immediately. Okay? So let us close this class right here. And those who are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. Don't forget to hit the like button if you have really liked my class and share it with your friends. And don't forget to comment any part that you have faced difficulty during my class. And you have our app in Google Play Store. You can download the app from there, where I used to come twice a week live. If you have any doubts regarding mathematics, you can ask me in that class. So thank you. Keep watching, keep learning. See you in my next class.